अनुपम। यस सर, कंटिन्यू करता हूँ। ओके, स्टार्ट। जरूरी आवश्यक सूचना जो आप लोगों को मैं दे देना चाहूँगा, सेशन के दरमियान किसी तरह का भी डिस्टरबेंस पैदा ना करें जिससे कि हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को कोई दिक्कत हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनुपम कुमार आप सभी के समक्ष सेशन कोऑर्डिनेटर के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 6 दिवसीय उद्भव लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जिसका आज चौथा दिन है और आज का विषय है स्कोप ऑफ CSR इन पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर को देना चाहूँगा, कॉमर्स डिपार्टमेंट के HOD प्रोफेसर GN शर्मा सर को, और धन्यवाद के पात्र जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सदस्य हैं वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं। खासकर हम सबके प्रिय शिक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र पांडे सर, विनीता मैम को। आज चौथा दिन है जिसका रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर कुमार आदित्य सर को मैं सबसे पहले तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूं। उसके बाद मैं सर के बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। कुमार आदित्य सर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफ स्टडीज इन मैनेजमेंट इन कॉमर्स, गुरुदास दास विश्वविद्यालय बिलासपुर से। his professional qualification national award under the name of junior research fellow in commerce guaranteed by UGC in June 2013. He has completed postgraduate degree diploma in business administration from Symbiosis Central for Distance Learning with first division, and his academic qualification is he acquired PhD in commerce from BHU Banaras in 2030. He completed MCOM with a specialization in finance from Faculty of Commerce, BHU Faculty of Commerce, Banaras. He completed BCom honors in BHU. He has published number of research papers in reference general conference proceeding with Ivashan. He has presented in international seminar and conference also. 20 paper presented national seminars and conference. He has attended 2 workshops, and he has also taken membership of Indian Accounting Association Patna branch. He also interested in teaching and research like this accounting and finance, corporate governance or corporate laws. I will like to invite Kumar Aditya sir to give a lecture. Please sir, handle the session. धन्यवाद। Hello. Hello. Hello sir. Yes Is sir. my voice is audible? Yes sir, you are audible आवाज आ रही sir. है ना? Yes sir, you are audible. ठीक है, okay. Thank you. Thank you, Mr. Anupam Kumar, for introducing me with the audience. Very good morning to all of you. So here I am exciting and feel blessed to have an opportunity to share my views and little knowledge through this unique series, Udbhav, a 7-day lecture chain built with the intent of active and interactive learning by Department of Commerce, Magad University, and Indian Accounting Association, Patna branch. Further, I would like to congratulate all the members of the organizing team of this program.
I also gratitude my sincere thanks to the entire team for providing me this opportunity. A special thanks to Professor J.N. Sharma sir, Dean Faculty of Commerce, Magad University, Dr. Dharendra Kumar Pandey sir, and Srimati Vinita Kumari madam. Good morning to all the participants. I, Dr. Kumar Adit, here present here to convey my views on scope of corporate social responsibility post COVID-19 world. So, overall agenda of this topic will include in this current health crisis, how should corporate respond? How companies can support society, particularly during and after this outbreak? What strategy can provide a positive impact on the society as well as business bottom line? Now, before coming on the crisis of this corona pandemic and responsibility of corporate house attached to it, I would like to throw a light and give a brief walk on the basic concept and mandatory rules and regulations attached in corporate social reporting and sustainable development. So this very first slide, as you see, the learning outcome has been emphasized on the screen. So the overall basic agenda or learning outcome has been focused in five different heads. The first will give you a conceptual background of the corporate social responsibility. Thereafter, the second agenda or the second head will be focusing on why corporate should be responsible, why the need of corporate social responsibility, why a company, why a corporation should be responsible towards the society. Thereafter, we have a voluntary to mandatory, a walk of, or we can say, a journey of voluntary CSR to mandatory CSR. As we all know that in 2013, the new Companies Act 2013 has made mandatory corporate social responsibility reporting to certain class of the companies. So we will also focus some light on the mandatory CSR. Thereafter, also one of the main key point of Schedule 7, the Schedule 7 of Indian Companies Act, which has been linked with the Sustainable Development Goal of 2030. And last but not the least one, the area to be focused in this particular pandemic time, that is post-COVID-19 area of future CSR provided by the corporate social, provided by the different corporate society. So starting with the very first beginning, CSR. What is CSR? CSR introduction as well as concept. I want to throw a light on the basic conceptual part of CSR. So as we know, the company's main objective is to maximize the shareholders' wealth. And it is generally agreed in the theory that the financial goal of the firm should be wealth maximization in the form of appreciation in share value, net worth, and overall enrichment in the total net present value of the firm. However, as per the modern thinking, the part of the resources used or exploited by the companies for achieving their financial goal should be compensated by the making social welfare. Companies cannot have a limited perspective of earning profit. There has to be a greater good to society. So a famous business author, John Ellington, has focused in 1997 and introduced a concept of triple bottom line concept in CSR. Varun, can you please change this slide? Next slide. Varun. Okay. So John Ellington in 1997 introduced the concept of triple bottom line concept for CSR that focuses on people, planet, and profit. The main three issues are social responsibility, environmental responsibility, and economic responsibility, respectively. The concept of triple bottom line demands that a company's responsibility lies with stakeholders rather than shareholders. Similarly, the Carroll pyramid, the Carroll 4 ways of pyramid also provided the
the concept of corporate social responsibility in four different disciplines, that is economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, and philanthropic activities. So what I am trying to say is that corporate social responsibility in this current scenario, corporate social responsibility has been taken as voluntary adaptation of social responsible conduct, and it is an integral part of the corporate management, which should be systematic and not occasional. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टमैटिक जर्नी होना चाहिए कंपनी का, ना कि ओकेजनली कोई ये ओकेजनली आपको परफॉर्म करना. इट शुड बी इन सिस्टमैटिक वे. Thereafter, the new corporate journey, the new corporate social responsibility definition also include the sustainability development concept. So corporate social responsibility should always linked with the sustainable development goal of 2030. And rather being a philanthropic activities, it should focus on the responsibility towards entire stakeholders. So the conventional approach of single bottom line has become the concept of past now. With the enactment of Companies Act 2013, corporations now have to focus on triple bottom line representing economic profit, social environment, as well as the safety for planet. So I would like to emphasize on one single definition of World Business Council for Sustainable Development. According to World Business Council for Sustainable Development, corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families, as well as the local community and society at large. So the message of CSR, Varun, can you change this slide? So the message of corporate social responsibility is very clear and precise. Corporate social responsibility has one specific message, that back to nature, safe future. The message is somewhat clear that whatever we are doing today will have an impact on the future, will have an impact on the future generation. So CSR is a gesture of showing the company's concern and commitment towards the society for sustainable development. It is an ethical behavior towards the society. CSR is just like a functioning of a tree. Tree used to take everything from the environment, and later on tree used to give you fruits. Tree used to give us fruits. So the message of CSR, corporate social responsibility, is very precise, that it should be back to nature and we have to save future, and that has included the concept of sustainable development. Thereafter, the very next question arises, that why corporate should be responsible, why the need of CSR. CSR हमें क्यों चाहिए, CSR इतना जरूरी क्यों है, why companies, corporation, business, firm should be responsible towards the society. Varun, next slide. Like in 1970, Milton Friedman, American economist, argued that the only social responsibility of the business is to maximize profit. He quoted a famous quote, "The business of the business is business." And this was the motto. Though he has quoted that the only responsibility of a business is to perform business in a very good manner. If a business is performing, if a business is adopting all legal activities, if a business is fulfilling the commitment of their shareholders, if the business is maximizing the wealth of the shareholders, the business is social responsible. This was the quote given by the Milton Friedman. But this was the motto of business person in early times. As per the modern thinking, the part of the resources used or exploited by the companies for achieving their financial goal
should be compensated by the making social welfare. Companies cannot have a limited perspective of earning profit. There has to be a greater good to society. So so in this particular current scenario, in this particular current generation, or we can say in this 21st century, we can say the company का limited perspection केवल maximization of shareholders wealth पे नहीं है, इसके बियॉन्ड जा चुका है. कंपनीज को सोसाइटी के ग्रेटर गुडनेस के बारे में सोचना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज वेरी मच नीडेड, बिकॉज कॉर्पोरेट शुड बी अकाउंटेबल टू द सोसाइटी. एंड सिंस कॉर्पोरेशन हैज taken on some debt from the society, so it's due responsibility of the corporation to provide back to society. The organization should be accountable to the society, as well as the debt which owed by the organization should be reback to the society. Since the society has given their resources, so the organization is expected to fulfill the expectations of the society. They function in. So here we are getting clarity about why CSR is needed. Now, as we all know, in 2014, the Companies Act 2013 has laid down, in 2014, they make mandatory corporate social responsibility. The corporate social responsibility was not a new concept. Many of the giant corporations across the globe, not only in India, across the globe, they were performing their responsibility towards the society. But somewhat we have found that the corporates are still lacking behind in performing their social obligations duty. So in 2013, or we can say 2013 तो Companies Act रहा है, 2014 was a landmark regarding the making CSR compulsory or mandatory for certain class of companies. Varun, can you please change the slide? So 2014 was a landmark, like a journey of corporate social responsibility from voluntary to legal mandated CSR. Like specifically Section 135 of the Companies Act, as well as Schedule 7 talks about corporate social responsibility for a certain class of the company. On the very 1st April 2014, India became the first country to legally mandate corporate social responsibility reporting. So many of the countries are adopting corporate social responsibility, but in 2014, India make compulsory reporting for CSR. To certain class of the company, performing corporate social responsibility has been mandatory. Though the practice of CSR is not new, many industries have undertaken all kind of activities. But in 2014, the Indian government, by Companies Act 2013, they make mandatory. The Section 135 and Schedule 7 is specifically exclusively focused in CSR areas, as well as what are the activities to be performed by the corporate for corporate social responsibility has been emphasized under Schedule 7 of the Companies Act 2013. So taking this legal mandatory, why now we have a question कि mandatory कर दिया गया, ये तो बहुत मतलब कि compulsion कर दिया गया. तो कुछ भी compulsion होता है तो क्या CSR मतलब अच्छे से कंपनी परफॉर्म करेंगे? क्योंकि prior to 2013 बहुत सारे ऐसे giant companies थे जो already they have performing their certain activities in corporate society, but 2014 में mandatory कर दिया गया, compulsion कर दिया गया certain class of the company. So taking this on a positive note, the enactment must be given credit on several counts. Like without this push, many companies, especially smaller ones, would not have bothered about social development. ठीक है, तो बहुत सारे कंपनीज स्टिल दो वी हैव मैंडेटरी क्लासिफिकेशन, बट स्टिल सीएसआर रिपोर्टिंग में देयर आर सम डेफिशिएंसीज जो हम लोग आगे बात करेंगे. तो ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी किया गया है, वॉलंटरी था बट अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है. एप्लीकेबिलिटी क्या है? तो कंपनीज हैविंग नेटवर्थ ऑफ 5 बिलियन, जिस कंपनी का नेटवर्थ 5 बिलियन, टर्नओवर 10 बिलियन या नेट प्रॉफिट 50 मिलियन होगा,
या उससे ज्यादा होगा ड्यूरिंग एनी प्रीवियस 3 इयर्स, तो उस कंपनी को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी हो गया है। ठीक है, वरुण प्लीज चेंज द स्लाइड। सो देखिए, a brief glimpse of rules and activities according to the notified section 135 and schedule 7 under the Companies Act 2013, as well as provisions rules of 2014 by Ministry of Corporate Affairs where applicability किसके लिए है? ऐसे कंपनी जिसका नेटवर्थ 5 बिलियन से ज्यादा हो, जिसका टर्नओवर 10 बिलियन से ज्यादा हो, जिसका नेट प्रॉफिट 50 मिलियन से ज्यादा हो ड्यूरिंग एनी प्रीवियस 3 इयर्स, तो उस कंपनी को CSR रिपोर्टिंग करनी होगी। साइमल्टेनियसली उस कंपनी को एक CSR कमिटी बनानी होगी जिसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उसमें कंपल्सन है। अब एक्टिविटीज क्या क्या करेंगे, तो जितने भी एक्टिविटीज करेंगे वो शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होने चाहिए। शेड्यूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट लेट डाउन CSR एक्टिविटीज। अब शेड्यूल 7 में 12 एक्टिविटीज हैं, उस 12 एक्टिविटीज को आपको परफॉर्म, उसी 12 एक्टिविटीज के अंतर्गत आप कोई भी प्रोजेक्ट CSR का चालू करते हैं तो उस 7वें शेड्यूल 7 को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और कितना करेंगे? स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स। आपको कितना CSR पे खर्च करना है? CSR फंड का स्पेंड कितना होगा? 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR कमिटी की क्या होगी? फॉर्मुलेट करना होगा, रिकमेंड करना होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जो परमिसेबल एक्टिविटीज है उसके अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट लेना होगा, रिकमेंड करना होगा एक्सपेंडिचर्स और CSR एक्टिविटीज को, और एक मॉनिटरिंग करना होगा टाइम टू टाइम CSR पॉलिसीज का। तो ये सब चीजें हैं आपको 2014 में ही मैंडेटरी कर दी गई थी। नेक्स्ट स्लाइड। So we have some certain rules and mandates. What will be CSR, what will not be CSR, because बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी थे, बहुत सारे एक्टिविटीज करते थे। तो सबसे पहला क्लियरिटी तो ये है कि कंपनीज कुछ भी करेगी वो शेड्यूल 7 के अंतर्गत आना चाहिए। शेड्यूल 7 में जो चीज गाइडलाइन, जो चीज एक्टिविटीज दी गई है उसके अंतर्गत आना चाहिए, तभी वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फुलफिल करेंगे, क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। सो CSR रूल्स एंड मैंडेट से एक्टिविटीज मस्ट बी इन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मोड। कोई भी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल अभी आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, पब्लिक, प्राइवेट, NGOs, क्योंकि ये मैंडेटरी है सभी के लिए, कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कंपनी के लिए। इफ यू आर ए कंपनी एंड इफ यू कम इन दैट पर्टिकुलर स्लैब ऑफ नेट प्रॉफिट, टर्नओवर एंड नेटवर्थ, आपको CSR करना है। तो एक्टिविटीज जो आप करोगे वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम मोड में होगा। जैसे आप देखते होगे कि महारत्नाज हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ भेल, ONGC, तो ये सब बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं। ग्रीन इंडिया मूवमेंट, क्लीन इंडिया मूवमेंट, स्वच्छ भारत मूवमेंट जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया, तो इसके अंदर क्लीन इंडिया, हेल्दी इंडिया, ये सब बहुत सारे बैनर हैं जिसके अंदर ये सब काम करते हैं, वो एक प्रोग्राम चलाते हैं। The CSR must be based on the CSR policy as per the Schedule 7 guideline, and Section 135 also includes a preferable location, that preferable in local region of operation. CSR को बोला गया है कि जहां कंपनीज काम करती हैं तो उस लोकल एरिया में पहले आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, उस लोकल एरिया को डेवलप कीजिए। The activities may undertaken through a non-for-profit reputed or own functioning. आप अपने थ्रू कर सकते हैं काम या फिर किसी NGO के थ्रू कर सकते हैं। NGO से कोलैबोरेशन कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए गवर्नमेंट के साथ, नॉट ओनली फ्रॉम NGO, पार्टनरशिप कर लीजिए किसी और कंपनी के साथ, और उसके अंतर्गत आप ये काम कर सकते हैं। मस्ट हैव स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, may invest an amount exceeding 5% of, not exceeding 5% of CSR expenditure on capacity building of CSR personnel. अब CSR एक्टिविटीज करने के लिए we need human resource, we need personal team, तो उस पे खर्च कितना होगा? 5% से ज्यादा नहीं। Salary to regular CSR staff can be included in CSR activities. अब हम बात करते हैं कि CSR क्या क्या नहीं होगा। तो expenses on activities required for any compliance। अब कोई रिपोर्टिंग करना है, उस पर कोई एक्सपेंसेस करते हो तो वो CSR में नहीं आएगा। एक्सपेंसेस ऑन एक्टिविटीज इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का कोई एक्टिविटीज है
तो वो भी CSR के अंतर्गत नहीं आएगा। एक्टिविटीज बेनिफिटिंग ओनली टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, वो भी CSR के अंतर्गत नहीं आएगा। या एम्प्लॉयज को आप बेनिफिट करते हो या फिर उसके फैमिली को बेनिफिट करते हो, तो वैसा एक्टिविटीज आप CSR के अंडर नहीं कर सकते हैं। इवेंट सच एज मैराथन, अवार्ड, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट इन स्पॉन्सरशिप, ये सब भी CSR के अंडर नहीं आएगा। देखिए CSR का एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, CSR इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज। अब फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज कहता है चैरिटी दे दीजिए, डोनेशन दे दीजिए अच्छे काम करने के लिए, तो चैरिटी एंड डोनेशन विल नॉट रेस्ट्रिक्ट द कंपनीज। चैरिटी एंड डोनेशन करने से कंपनीज कहे कि हम CSR एक्टिविटीज करते हैं, तो ये बहुत ही नैरो माइंडेड हो जाएगा। तो CSR कंसेप्ट बताया गया है, इट शुड बी ओवर एंड अबव द फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज, जस्ट मेयर गिविंग डोनेशन और मेयर मीटिंग सम चैरिटी। चैरिटी करने से आप बोलेंगे कि मेरा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, तो वैसा नहीं है। CSR शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज। ठीक है, दो अर्लियर मेनी कंपनीज हैव डन दिस फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज कंसिडर्ड एज ए CSR एक्टिविटीज, अभी भी हो रहे हैं, बट स्टिल कंपनी को ये सोचना चाहिए कि केवल फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटीज पे सीमित ना रहे। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वरुण कैन यू प्लीज चेंज दिस स्लाइड। नाउ 2014 में तो हमारे पास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लॉ आ गया और उसको मैंडेटरी कर दिया गया सर्टेन क्लास ऑफ कंपनीज के साथ। साइमल्टेनियसली UNDP ने, यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 को भी इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, so in 2015 the sustainable development goal, also it is known as global goal, were adopted by United Nations members, a universal call to action to end poverty, protect planet and ensure that all people enjoys peace and prosperity by 2030। so sustainable development goal जो ये SDGs है, SDGs का एजेंडा है 2030 तक। so this SDG includes certain parameters, overall this SDG includes 17 different heads, 17 डिफरेंट हेड्स एंड 169 टारगेट्स की बात करता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू अचीव बाय 2030 तक यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की बात की है, जो कि इसको पहले हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से भी जानते थे। और इंडिया ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज द पोस्टर चाइल्ड ऑफ दिस SDG कमिटी, इंडिया भी इसका एक मेंबर रहा है और इंडिया भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज अ पोस्टर चाइल्ड, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ इंडिया जो है SDG कमिटी में मेंबर्स रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जब हम लोग का टारगेट ये सेट हुआ, तो अभी क्या है कि कॉर्पोरेट्स को somehow, if I talk about MNCs, if I talk about corporate responsibility as a whole globe, तो कहीं ना कहीं उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी अचीव करना है। एंड जो हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट है वो शेड्यूल 7 पर रेस्ट्रिक्टेड है। सो वी हैव टू, जैसे अर्लियर अभी मैंने पहले ही बोला था कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड ऑलवेज लिंक विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मॉडर्न, particularly in this 21st century, the corporate social responsibility scope has become much wider. Corporate social responsibility is not completed without sustainable development. So सोसाइटी के लिए तो आपको रिस्पॉन्सिबल रहना ही है, साथ ही साथ आपका जो भी काम होगा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी फुलफिल करना चाहिए। सो corporates in India, corporate sector should participate. Now, particularly in Indian context, I am talking, the corporate sector should participate in leveraging the corporate social responsibility by alignment with the sustainable development goal. अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 17 की एरिया है, कौन कौन सा है? पहला SDG गोल है, there should be no poverty. Second SDG गोल है, there should be zero hunger by 2030. They have set a target. SDG थर्ड बोलते हैं गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, फोर्थ क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
9th, industry, innovation and infrastructure. 10th, reducing inequalities. 11th, sustainable cities and communities. 12th, responsible consumption and production. 13th, climate action. 14th, life below water. 15th, life on land. 16th, peace, justice and strong institution. And 17th, last but not the least one, partnership for the goal. So partnership for the goal, it is one of the main basic agenda. Partnership for the goal. So to achieve this all above 16 goal, आप डिफरेंट पार्टनरशिप कीजिए, डिफरेंट अपने गोल को अचीव करने के लिए कॉर्पोरेट्स अकेला नहीं, गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट कीजिए, डिफरेंट एनजीओ के साथ अलाइनमेंट कीजिए और ये अचीव कीजिए. तो सिमिलरली इन इंडिया वी हैव शेड्यूल 7. नाउ इंडिया में कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल कंपनीज एक्ट कि आपको शेड्यूल 7 को फुलफिल करना है. एंड बाय लकली आप ये देखेंगे कि शेड्यूल 7 करेंटली आफ्टर द अमेंडमेंट, रिसेंट अमेंडमेंट जो कि अभी सर्कुलेशन आया मार्च 23 तारीख को, मार्च 28 तारीख को और अप्रैल 10 तारीख को, तो उसमें एक चेंजेस किए गए हैं और उस चेंजेस के बाद हमारे पास 12 डिफरेंट एक्टिविटीज हैं शेड्यूल 7 के अंतर्गत. और ईच एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल 7 हैज ऑलरेडी लिंकेज विद द CSR SDG डेवलपमेंट. तो हमारा ऑलरेडी जो शेड्यूल 7 है, चाहे शेड्यूल 7 का कोई भी आप पैरा उठाइएगा, आप देखिएगा कि आप SDG को अचीव कर रहे हैं. तो इफ इंडियन कंपनीज, अगर इंडियन कंपनी शेड्यूल 7 के भी अकॉर्डिंग काम करता है तो इवेंचुअली एसडीजी को वो अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट वो फुलफिल करेगा, जो कि नेक्स्ट वेरी स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा, विच हैज बीन मैप्ड. वरुण प्लीज चेंज कीजिए स्लाइड. सो now as I said, it's time to leverage the CSR activities to achieve the sustainable development goal, and the various SDG mapped with the activities listed in schedule 7. अब हमारे पास शेड्यूल 7 है. शेड्यूल 7 कंपनीज एक्ट का जो है सबसे पहला बात बोलता है इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन. आई हैव जस्ट एम्फसाइज्ड द फर्स्ट मोटो, दैट इज फर्स्ट वर्ड, और वी कैन से कि जो हाइलाइट्स किए हुए मैंने बहुत ही स्मॉल में लिख दिया है, इरेडिकेटिंग हंगर. बट अगर आप शेड्यूल 7 पूरा देखते हैं कंपनीज एक्ट का, एमसीए के साइट पे आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी एंड माल न्यूट्रिशन, साइमल्टेनियसली प्रोमोटिंग हेल्थ केयर. तो ये जो हमारा शेड्यूल 7 का पैरा 1 है, वो ऑटोमेटिकली हमारा एसडीजी को 1 2 3 6 जो 1 बोल रहा है ना एसडीजी कि there should be no poverty, there should be zero hunger, तो इसको already fulfill करेगा if any Indian companies is fulfilling the criteria of schedule 7.1. अगर कोई भी schedule 7.1 को करता है तो eventually वो sustainable development 1 2 3 और 6 को भी fulfill करेगा. उसी तरह each and activities like para 2 of schedule 7 said promoting education including special education and employment, enhancing vocational skill especially among children, women, elderly and differently abled, livelihood enactment project. अब शेड्यूल 7 का पारा 2 बोलता है कि आपको करना है प्रमोट एजुकेशन. तो शेड्यूल 7 का जो पारा 2 है, तो आप देखेंगे क्या कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका 4th पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 is entirely focused on good quality education. So कहीं ना कहीं I have tried to link the all schedule 7 activity, all the activities of schedule 7 from the sustainable development goal activities. और we will find, बहुत ही ये अच्छी बात है कि schedule 7 का हर एक्टिविटीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ टैली कर रहा है. सो अगर इंडियन कंपनी शेड्यूल 7 को फुलफिल करता है तो इवेंचुअली इन लॉन्ग रन वो अपना एसडीजी गोल को भी ऑटोमेटिकली फुलफिल कर लेगा. ठीक है, तो आई विल नॉट गो ऑन पर्टिकुलर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. जैसे शेड्यूल 7 में मैं आई विल जस्ट रीड आउट शेड्यूल 7 क्या क्या आपको बोल रहा है. शेड्यूल 7 बोलता है इरेडिकेटिंग हंगर, promoting education, promoting gender equalities, thereafter ensuring environmental sustainability, like schedule 7 का पारा आपका
बोलता है फिफ्थ, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर। thereafter we have measures for the benefit of armed force veterans, war widows and their dependent, training to promote rural sports, contribution to prime minister national relief fund, pm care fund and any fund created by central government। पारा नाइन्थ बोलता है कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर फंडेड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लैबोरेटरीज में आप कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं CSIR के साथ, DRDO के साथ, बहुत सारे मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जिसके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। पारा 10th बोलता है रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 11th स्लम एरिया डेवलपमेंट एंड 12th इज डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूडिंग रिलीफ, rehabilitation and reconstruction activities। so in total what we are seeing here कि हमारे पास टोटल शेड्यूल 7 में 12 एक्टिविटीज हैं। अब वो 12 एक्टिविटीज को लिंक कर दिया गया है लिवरेज करने के लिए CSR टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और बहुत सारी कंपनीज ऐसा कर रहे हैं। यू विल फाइंड डिफरेंट रिपोर्ट्स जो कि दे हैव स्टार्टेड फॉर द for achieving the sustainable development goal target by 2030। so आपने इस स्लाइड पे क्या देखा कि various sustainable development goal target has been mapped with schedule 7 activities of Indian Companies Act और 17 का 17 एक्टिविटीज 17 एक्टिविटीज जो है वो पूरा का पूरा शेड्यूल 7 के अंदर आप मैप कर सकते हो, आप लिंक कर सकते हो। सो अलग एक्टिविटीज आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग एक्टिविटीज कॉर्पोरेट को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंपनी शेड्यूल 7 को फुलफिल करता है तो इवेंचुअली वो SDGs को भी अचीव करेगा। सो कैन यू प्लीज चेंज दिस स्लाइड वरुण? वरुण नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, नाउ कमिंग ऑन द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। सो ऐसा नहीं है, कंपनीज जो है एज वी नो कि लीगल मैंडेटरी कब हुआ 2014 में, तो वी हैव अ लीगेसी, वी हैव जनरली वी कैन से फ्रॉम मैंडेटरी CSR नाउ वी हैव क्रॉस्ड मोर देन 5 ईयर। 5 ईयर का एक चैनल बन गया है। 2014 में पहली बार मैंडेटरी किया गया, 2014 से 2020, नाउ वी आर इन 2020, तो वी हैव 5+ ईयर, जो कि एक बहुत ही अच्छा आपको ट्रेंड बताएगा, बहुत ही अच्छा आपको इनपुट देगा कि हमारे इंडियन कंपनीज where we stand, where our Indian corporates stands in distributing in their corporate social responsibility। corporate social responsibility को वो discharge कितने effectively कर रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक 5 साल का ट्रेंड है। so particularly I have focused here on financial year 2018-19। so as we see the chart, CSR spend of top 10 states, a significant growth can be seen in number of companies and total CSR spend since CSR reporting made mandatory from 2014 onwards। The year 2018 reported highest CSR activities, both in terms of companies participation and in absolute corporate social responsibility fund spend। Simultaneously, on the right side, we have some of the top corporate contribution towards the society। The top companies have a healthy mix-up of public and private entity, and still the central public entity contribution major holdings of CSR spend। So हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास सबसे पहले तो 2018 में टॉप 10 स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, गुजरात है, तमिलनाडु है, उड़ीसा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तेलंगाना। सो अमंग दिस महाराष्ट्र सबसे ऊपर CSR स्पेंड में, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु। सो अमंग दिस 10 स्टेट जो टॉप पे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको ये देखने के लिए मिल रहा है ट्रेंड में कि सिंस द मेजर कॉर्पोरेट्स वी कैन से कि जो मेजर कॉर्पोरेट्स हैं, जो ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट्स है, ये कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात ऑलरेडी एज वी नो दीज आर द कॉर्पोरेट्स हब। तो डेफिनेटली है कि सिंस एक क्लॉज हमारे पास है सेक्शन 135 में कि CSR को फोकस करना है कहाँ, लोकल एरिया पे। तो लोकल एरिया पे तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, दिल्ली, कहीं ना कहीं सब ये टॉप 5 कैटेगरीज में आ रहे हैं। तो CSR तो कॉर्पोरेट्स तो कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। एंड इवन इफ वी
saw the legacy from 2014 to 2018, तो हमने देखा है कि एक significant growth हुआ है number of companies as well as in CSR amount spent, discharging the CSR amount in overall CSR activities, तो वो भी एक बहुत ही significant growth है और 2018 में तो सबसे ज्यादा है. Simultaneously we can see the corporates कैसे response कर रहे हैं CSR activities को. तो top 10 आपके पास यहाँ पे corporates के नाम है और आप देख लीजिए इसमें कि जो पब्लिक एज वेल एज नॉन पब्लिक प्राइवेट, तो एक अच्छा ग्रुप है. ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर हम कहेंगे कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, महारत्ना है वही कर रही है. एंड डेफिनेटली अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे कि महारत्ना कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है सीएसआर एक्टिविटीज को डिस्चार्ज करने के लिए. नाउ इन दिस करेंट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, नाउ आई विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द कोविड सिचुएशन. ठीक है, हमको 2018 में दिख रहा है कि, और 2018 ही नहीं, आप देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का लीगेसी है. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में बहुत ही अच्छे से कर रही है. ठीक है, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं. बट कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कॉर्पोरेट COVID-19 एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज, वरुण कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड. वरुण नेक्स्ट स्लाइड कीजिए जरा. हाँ, COVID-19 and corporate social responsibility. So, as we know that, Ministry of Corporate Affairs have already clarified that all CSR expenditures related to COVID-19 activities will be considered as corporate social responsibility. So now I want to focus the entire discussion on this particular situation, COVID-19 or Corona outbreak. Now, in this particular current time perspective, the pandemic coronavirus is really putting all corporate social responsibility to the test. अब corporate social responsibility का test हो रहा है, ठीक है, in this particular situation. Now, as the economic activities gradually start resuming, company must strive to use this crisis as an opportunity to expand their CSR footprint. Instead of restoring to easier option of discharging their CSR obligations, like contributing to a designated fund, they must first strive to professionalize their CSR team, forge new partnership with NGOs, and work with the district administration to deploy their CSR fund in the most effective manner. However, contributing to designated funds should be being used as a last resort measures and not as a habitual way of discharging legal obligations by corporation. So now a large amount of CSR fund has already been committed to a particular designated fund, such as we can say Pradhan Mantri PM Care Fund. ठीक है, तो a large amount of CSR fund has been already committed to PM Care funds. With it is understandable that it gives the urgent need for mobilizing resources. Donation to a designated fund is a good option for smaller companies. The larger MNCs must follow the hybrid approach, that is, commit a part of their CSR to relief disaster management fund, and the rest should be used by them in implementing COVID-19 project on the ground. So आप देखो MCA with a different series of general regulation, Ministry of Corporate Affairs. सबसे पहला रेगुलेशन आता है, जनरल रेगुलेशन आता है 23 मार्च को, फिर आता है 28 मार्च को, और फिर आता है 10 अप्रैल को, रिगार्डिंग मेकिंग क्लैरिफिकेशन ऑफ CSR एक्सपेंडिचर ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन. सो इसमें एक्टिविटीज क्या क्या बताया गया, आप देख सकते हैं कि इफ अ कंपनी इज कंट्रीब्यूटिंग टू PM केयर फंड, तो दैट पर्टिकुलर फंड विल बी रिगार्डेड और विल बी एलिजिबल फॉर CSR. ठीक है, शेड्यूल 8 क्लियरली बोलता है कोई भी फंड, शेड्यूल 7 क्लियरली, शेड्यूल 7 पारा 8 क्लियरली बोलता है कोई भी फंड आप क्रिएट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो, और उसमें अगर आप ट्रांसफर करते हो पैसा, तो वो CSR एक्टिविटीज के थ्रू आएगा. वो वरुण, कैन यू प्लीज गो बैक टू दिस स्लाइड. वरुण सर, गो बैक. स्लाइड को पीछे कीजिएगा.
So maybe, hello, आवाज आ रही है ना मेरी? सर, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, ऑडिबल है? यस सर, यू आर ऑडिबल। एक आगे कीजिए, नेक्स्ट स्लाइड। वरुण सर, आप Hello. सर की आवाज को सुन पा रहे हैं? Raj is presenting the screen because my laptop is discharged totally. So Raj is presenting the screen. ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑलरेडी सेड कि आप अगर पीएम केयर फंड्स में ट्रांसफर करते हैं वो पैसा, तो वो जो पैसा होगा कॉर्पोरेट्स का, वो एलिजिबिलिटी होगा सीएसआर के लिए। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि शेड्यूल 7 का जो पारा 8 कहता है कि कंट्रीब्यूशन टू नेशनल रिलीफ फंड या एनी रिलीफ फंड created by central government, so that particular CSR fund will be regarded as the can be eligible for CSR activities. Similarly, the second activities, if any corporates is contributing in chief minister relief fund, so that particular fund will not be regarded as corporate social responsibility. साइमल्टेनियसली रेगुलेशन ये भी बताया कि लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज को, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, तो ये आपका सीएसआर एक्टिविटीज में नहीं आएगा, क्योंकि ये मोरल और ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपका ये मोरल ऑब्लिगेशन है कि आपके एम्प्लॉयज को आपको पेमेंट करना है। उसी तरह कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई भी गेस्ट, ऐसे आपके एम्प्लॉयज हैं जो ऑलरेडी आपके साथ अटैच्ड हैं, आप उनका मदद करते हैं और आप फिर बोलते हैं कि मैं सीएसआर एक्टिविटीज किया, तो दैट विल अगेन नॉट कंसिडर्ड एज ए सीएसआर एक्टिविटीज। तो यहाँ पे क्लियरली आप देखो सेक्शन 135 हमारा पहले ही क्लियर बोल चुका है, मेयर सपोर्टिंग और मेयर गिविंग बेनिफिट टू योर एम्प्लॉय और फैमिली मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉय और डिपेंडेंट ऑफ द एम्प्लॉय विल नॉट बी कंसिडर्ड एज सीएसआर एक्टिविटीज। क्लियर? तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने लगातार एक सीरीज ऑफ रेगुलेशंस निकाला और बहुत ही अच्छे से क्लियरिटी किया और क्लियर किया कि आपका कौन कौन सा एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज के अंडर काउंट होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ठीक है, और हम फिर देख सकते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन प्रधानमंत्री केयर फंड, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप और अप्रिशिएट करने वाला स्टेप है कि कॉर्पोरेट्स, हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स बहुत बढ़ चढ़कर आगे पार्टिसिपेट करते हैं इस पैंडेमिक सिचुएशन को डील करने के लिए। बट एज आई सेड, मेयर कंट्रीब्यूशन टू डेजिग्नेटेड फंड विल नॉट सॉल्व द करंट सिचुएशन। तो यहाँ पे जो बात की जाए थी कि छोटे फर्म अगर हैं, फॉर एग्जांपल इफ अ कंपनी इज वेरी स्मॉल और वो डेजिग्नेटेड फंड में ट्रांसफर करता है, दैट शुड बी ओके। बट इफ वी टॉक अबाउट जायंट फर्म, लार्ज फर्म, एमएनसीज, तो कहीं ना कहीं उनका ऑब्लिगेशंस, दायित्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो दे शुड अडॉप्ट एन हाइब्रिड कल्चर ऑफ डिस्चार्जिंग देयर सीएसआर एक्टिविटीज। आप डेजिग्नेटेड फंड में भी ट्रांसफर कीजिए, सिंस यू हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंस यू हैव रिसोर्सेज, तो आपको simultaneously apart from contributing to designated fund, आपको ग्राउंड लेवल पे भी काम करना पड़ेगा। और ऐसा किया आप, ऐसा नहीं है कि कंपनीज ने नहीं किया, कंपनीज following the hybrid approach are already setting a good example for other to follow, like they have, हमने recently सुना, बहुत सुना भी और देखा भी कि they have proactively lent their support to the government in manufacturing ventilators, PPE kit, face mask, और उसके बाद आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आइसोलेशन सेंटर बना रहे हैं, N95 मास्क का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स गवर्नमेंट के साथ अलाइनमेंट करके, एनजीओस के साथ अलाइनमेंट करके, दे आर कमिंग फॉरवर्ड। Many private companies have already teamed up with the NGOs. Many private companies have already teamed up with the NGOs to provide daily food and ration to the needy during this lockdown period, and are doing exceptional work to complete the effort of
स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कंपनीज नहीं है, कंपनीज हमारे आगे आए हैं और बहुत ही एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं। बट और देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इसी क्राइसिस में पीपल अप्रिशिएट करेंगे आपका एफर्ट को। Now in time of this crisis, people will definitely appreciate the effort of those who helped them and will remember the companies which sacrifice their short-term gains in order to value their commitment to social responsibility. MCA ने तो यहाँ तक कह दिया है कि go over and above the legal mandatory ceiling of 2%. 2% से आप over and above जाइए और अभी पैंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। सो इंडियन कॉर्पोरेट जो है और सिविल सोसाइटी जो है रिस्पॉन्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक इन वेरी पॉजिटिव मैनर, बहुत ही डेफिनेटली वी कैन से कंडेमेबल अप्रोच है कि वो लोग अच्छे से बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। सो कैन यू चेंज दिस स्लाइड नाउ, अगर टेक्नोलॉजी ठीक हो गई हो तो। यस सर। जो टेक्निकल इश्यूज थे ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो चेंज कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए स्लाइड। वरुण यस सर, अब स्लाइड सही दिख रही है सर? हाँ आप थोड़ा आगे स्लाइड चेंज कीजिए। ओके सर, दिस वन सर, नेक्स्ट दिस वन। अरे यहाँ नहीं आ रहा है स्लाइड, नहीं आ रहा? स्लाइड इज नॉट मूविंग हियर। जस्ट पिन द स्लाइड सर, पिन द स्लाइड। मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ सर। हो इज मूविंग। वरुण नहीं कर रहे हैं क्या? कौन कर रहे हैं? सर ऋतुराज नाम है सर। Guest work and by name of the guest workshop. गेस्ट वर्कशॉप सर इट इज। 1 minute. Guest workshop. Yes, I have pinned guest workshop. Guest workshop presentation. Please pin the guest workshop presentation. गेस्ट वर्कशॉप के नाम से ही आ रही है, गेस्ट वर्कशॉप 2 आ रहे हैं। प्रेजेंटेशन वाला पिन कीजिए। गेस्ट वर्कशॉप प्रेजेंटेशन सर हाँ आगे बढ़ाइए। और आगे सर। हाँ दिस वन। जस्ट लेट मी नो व्हिच स्लाइड टू स्टॉप सर। पीछे जस्ट वन बैक, गो बैक। दिस वन। Go back. हाँ, okay, thank you. Okay. So now here we can say that again, Indian corporates and civil society responded to COVID-19. So ये we have discussed already कि कैसे COVID-19 और corporate social response MCA का गाइडलाइन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसमें कौन कौन से CSR के अंदर आएंगे, कौन कौन से एक्टिविटी CSR के अंदर आएंगे, कौन कौन से एक्टिविटी CSR के अंदर नहीं आएंगे। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा। स्लाइड नंबर हाँ ओके थैंक यू। इंडियन कॉर्पोरेट्स एंड सिविल सोसाइटी रिस्पॉन्डेड टू कोविड-19। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, I have not incorporated all the corporates, but major corporates ने बहुत ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया है टू टैकल टू फाइट इन दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन, जो कि आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से उन लोगों ने मतलब कंट्रीब्यूट, पीएम केयर्स में भी कंट्रीब्यूट किया है साइमल्टेनियसली। आई कैन से कि अपार्ट फ्रॉम पीएम केयर फंड दे हैव ऑन ग्राउंड लेवल दे हैव आल्सो come forward to help or to they come at front line to help and to cope up with it to tackle this particular pandemic situation. चलिए आगे कीजिएगा। नेक्स्ट ऋतुराज। हाँ इसके आगे कीजिए, इसके आगे कीजिए। लास्ट स्लाइड पे आइए, आखिरी स्लाइड नंबर 14। स्लाइड नंबर 14 कॉर्पोरेट। देखिए अब ये देखिए पीएम केयर फंड में एज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि अ ह्यूज एंड मेजर कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड by number of corporation in PM care fund for fighting this pandemic. Apart from the contribution to the relief fund, companies also contributed for healthcare equipment, mask and PPE kit manufacturing, feeding to homeless, providing ventilator and quarantine center. So Indian companies have come forward and shows their footmark and gesture of being responsible corporate citizen across the nation for fighting and tackle with the epidemic situation. तो
तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमारे कॉर्पोरेट्स ने बैकफुट पर रहा. कॉर्पोरेट्स हैव shown their gesture of being social responsibility for the society. Now, but in this current pandemic situation, as I said in the discussion, this current pandemic situation is putting कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द टेस्ट. अब यहाँ पे टेस्टिंग होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलिटी में ऑन ग्राउंड कितने हम अचीव किए हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. लाइक वी कैन से दैट एमसीए ने जो स्टेप लिया है कि आप कोविड-19 को सपोर्ट करने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो सीएसआर के अंडर आएगा. इंक्रीजिंग स्टेप है, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था जो कि प्रोएक्टिवली हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने लिया. So now putting CSR fund to good use during and after coronavirus. Now it is time to put it is time for corporates to put their CSR fund for the good use, not only in current scenario but also after this coronavirus pandemic. So I have tried out to bifurcate some of the different sectors. I have tried out to mention some of the different sectors जहां corporate social responsibility अभी इस सिचुएशन में, और हो सकता है इस सिचुएशन के बाद भी बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए. डेफिनेटली हो सकते हैं कि देयर आर मच सेक्टर्स टू बी एक्सप्लोर्ड, बट आई हैव पुट माय व्यूज हियर on some of the certain aspects for discharging the CSR activities by the corporate in this particular pandemic situation as well as after this pandemic situation. The very first I can say the very first sector is CSR on preventive healthcare and medical research. The next point I will like to highlight on CSR priority for strengthening IT infrastructure for online education. CSR for empowering vulnerable communities, CSR towards migrant labor, CSR in aspirational district, CSR over and above the mandatory ceiling, CSR for all. So coming on the very first part of discharging CSR on preventive health care and medical research. Now, जो activities है CSR on preventive health care and medical research already mentioned in para 1 of schedule 7. Para 1 schedule 7 जो हमारा कहता है eradicating hunger, simultaneously apart from eradicating hunger, the para 7 of schedule 1 also focus on health care, good health care for all. और हमारा जो social development goal है, agenda है 2030 का, the goal number 3 is also specifically promoting the good health for all. What I have tried here कि CSR on preventive health care as well as medical research को आप combine कीजिए. It will be a very effective partnership and innovation is needed. A very effective partnership and innovation is need of time, not only in current perspective but also in upcoming generation. No doubt, corporate are already engaged themselves under the banner for better health care. They are promoting good health. Further, on September 2019, Ministry of Corporate Affairs ने scope of CSR को widen किया था by saying that the 2% fund can now be spent in public university for research and innovation and also for government funded tech incubators. तो यहाँ पे what I have tried to put here कि in this current situation health care जो हम लोग देख रहे हैं अभी फिलहाल कि कहीं ना कहीं ठीक है, we have health care है हमारे पास, but in this current situation we are lacking, especially when corona patients are increasing significantly in metropolitan cities. There is a huge lack and shortage of health infrastructure and equipment, particularly at the time of emergency. Somewhat we are seeing the weaknesses attached with the frontline corona warriors. A very significant cooperation done by some of the major corporate house will be really appreciable, like providing quarantine bed center, dedicated COVID hospital, Reliance ने दिया था, manufacturing of masks
distribution of sanitizer, etc. But still, these all efforts are like a drop of water in an ocean. जो अभी हमारा current situation है, तो जो अभी helping हो रहा है, it is just like a drop of water in an ocean. Corporates should now come forward, join and collaborate their hands with government for improving and developing the health infrastructure. Particularly the public health infrastructure should be more focused and making a strong development so that majorly deprived class, lower section will get benefited. And thereafter they can put their CSR fund on research and innovation. अब देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन जो है हमारा पारा 9 ऑफ शेड्यूल 7 has incorporated with tech incubators and research and innovation. आप डीआरडीओ के साथ कोलैबोरेशन करके, आप आईआईटीज के साथ, एनआईटीज के साथ, एम्स के साथ कोलैबोरेशन करके आप रिसर्च कीजिए. तो आई हैव एम्फसाइज्ड मोर ऑन मेडिकल रिसर्च करेंटली, मेडिकल रिसर्च एज वेल एज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. बट सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. तो बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉर्पोरेट्स को मैं यही कहना चाहता हूँ कि कम कोलैबोरेट with the government efforts, governments are putting their efforts. तो आप उसको देखिए, सीएसआर का सिंपल सा यही कंसेप्ट ही था कि आपको एक्सेलरेट करना है गवर्नमेंट के एफर्ट्स को. कॉर्पोरेट शुड ज्वाइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट टू एक्सेलरेट the overall economy in case of for the corporate social responsibility discharging. तो हमारा पारा 1 तो है डेडिकेटेड हेल्थ के लिए, पारा 9 है रिसर्च के लिए. तो मेरा यही कहना है कॉर्पोरेट के साथ कि आप आइए फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि अभी हमारा सबसे बड़े बेसिक नीड यही हेल्थ केयर है. तो आइए कोलैबोरेट कीजिए और पहले फोकस कीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्थ केयर. अब दैट इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो ठीक है, वी हैव सम जो थोड़े से भी अपर कम्युनिटीज हैं तो दे विल मैनेज, वो करते हैं मैनेज. हालांकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े लेवल पर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको सुधारने की जरूरत है, जिससे जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो लोअर कम्युनिटीज हैं, जो वीकर सेक्शन है, उनको बहुत ही अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, हेल्थ केयर मिले, फैसिलिटीज मिले. और इसके बाद वंस यू कंप्लीट द बेसिक एमिनिटीज इन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूट फॉर मेडिकल रिसर्च. मेडिकल रिसर्च में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. या हमारे पास एम्स है, हमारे पास डिफरेंट लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, डिफरेंट रिसर्च सेंटर हैं. आप उनके गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर है उनके साथ कोलैबोरेट करके उनके साथ कोलैबोरेट करके आप इस पे काम कर सकते हैं. सो पहला एजेंडा तो यही है कि हेल्थ केयर पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. सेकंड एस्पेक्ट है सीएसआर प्रायोरिटी फॉर स्ट्रेंथनिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन एजुकेशन. अब देखिए अभी रिसेंट बहुत ही अच्छा, देखिए आप अब हम लोग क्या सुन रहे हैं इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में, वर्क फ्रॉम होम, टीच फ्रॉम होम, स्टडी फ्रॉम होम, जो अभी हो रहा है currently what we are doing here is teach from home, study from home, learn from home, work from home. So the distancing, that is maintaining social distancing, is need of time today. Social distancing, physical distancing आपको तो रखना ही रखना है. और the pandemic COVID-19 arose or given an explosion to online learning. So the very first question arises here, is India ready for digital transformation? क्या इंडिया रेडी है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या हमारा रिसोर्सेस कैपेबल है सबको ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए? सो नाउ वी कैन क्लियरली सी दैट इट हैज बीन मोर देन 3 months now since the school, colleges, universities were being closed. More and more focused and encouraging steps are being taken for promoting online education, but still on ground we are far away. Numbers of limitations has been attached. Promoting education comes under para 2 and 4 of schedule 7 and sustainable development goals respectively. अभी देखिए ऑनलाइन एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ और साथ ही साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का. अभी आप रिसेंटली देखेंगे ऑलमोस्ट आई थिंक कि हम लोग सभी के लोगों के पास जियो का सिम रहता है. तो जब जियो का आप रिचार्ज कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि एक नया पैकेज आया है, वर्क फ्रॉम होम का पैकेज, जिसमें आपको ज्यादा डेटा मिल रहा है. ठीक है, तो
कहीं ना कहीं एक कॉर्पोरेट ये जो प्रमोट जियो क्या कर रहा है कि सिंस यू आर वर्किंग फ्रॉम होम तो आपको ज्यादा डेटा का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं ये this particular current situation में Jio is providing you some different kind of package, net package, data package we can say. So now as we are here gathered on the platform of Google Meet, तो एक हमारे पास infrastructure already है, but ये कितनों के पास है? So हम ये साफ साफ देख रहे हैं कि जो infrastructure है importance in playing the is playing the very essential role here. The responsibility of IT companies and telecom companies has been significantly widened and become broader in this particular situation. The corporates should come forward with effective measures for enhancing the core infrastructure to make education online. Like अब मेरा यहाँ पे एक रिकमेंडेशन है कि जैसे हम लोग खोलते हैं, स्टूडेंट का बैंक अकाउंट खोलता है, तो क्या एक स्टूडेंट को सिम कार्ड, स्टूडेंट सिम कार्ड करके कोई टेलीकॉम कंपनीज ऐसा है? अगर हैं तो अगर आप लोग अभी बताइएगा कि अगर कोई ऐसा टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में आपको स्टूडेंट सिम कार्ड कर आता हो जिसमें आपको कुछ फैसिलिटीज जो जनरल फैसिलिटीज मिलती हैं, कुछ लिबरल फैसिलिटीज आपको उस पर मिले, स्टूडेंट्स को ज्यादा डेटा पैकेज मिले, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिम कार्ड को यूज करने के लिए। तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि रिलायंस जियो आपको क्या कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम एक नया पैकेज शुरू किया है, डेटा पैकेज। तो क्या कोई ऐसे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज आ सकते हैं जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्टूडेंट सिम कार्ड दें जिसमें उनको ज्यादा नेट मिले, और साथ ही साथ नेटवर्क एफिशिएंसी बनाना पड़ेगा रूरल एरियाज में, क्योंकि अब रूरल एरियाज को भी, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं हम लोग सुनते हैं कि बीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी आल्सो, बीइंग इन दिस छत्तीसगढ़ आल्सो, तो बहुत सारे क्वेरीज आते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे पास नेट का एक्सेस बहुत अच्छा से प्रॉपरली नहीं है, यहाँ तो 3G ही चलता है, यहाँ 4G नहीं आया है। तो ये सब जो शॉर्टकमिंग्स है ये कॉर्पोरेट्स को कहीं ना कहीं दूर करना पड़ेगा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो ऑनलाइन एजुकेशन है ये नीड ऑफ टाइम तो अभी के लिए ही नहीं, अब ये परटेन करेगा, इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसको हमेशा प्रमोट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईटी इंडस्ट्रीज की, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज की, कहीं ना कहीं वाइडर हो रहा है। कोई ऐसा टूल किट जनरेट कीजिए, जैसे देखिए गवर्नमेंट भी, हमारे पास मूक्स है, हमारे पास स्वयं है, तो ये सब जो भी प्लेटफॉर्म है मूक्स का, स्वयं का, तो कहीं ना कहीं जो ये मूक्स और स्वयं है ये रिकॉर्डेड, जो अभी हम लोग जैसे देखिए रियल टाइम हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास डिफिशियंसी है ये रियल टाइम इंटरेक्शन की। तो अभी भी इसकी लिमिटेशन, जैसे गूगल मीट की हम बात करते हैं, डिफिशियंसी है कि मैक्सिमम ऑफ 200 या 100 150 पार्टिसिपेशन ज्वाइन करते हैं। तो इस चीज को हमको और बढ़ावा देना पड़ेगा। तो एक ऐसा कंसेप्ट के साथ कोलैबोरेट कीजिए कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे सकें। तीसरा पॉइंट आता है हमारा CSR फॉर एम्पावरिंग वल्नरेबल कम्युनिटीज। Now, when we talk about marginalized or vulnerable communities, empowering vulnerable and marginalized local communities is a multi-sectorial responses which seeks to improve the human securities and access to the social, economics, and civics rights of vulnerable communities. To empower the vulnerable communities at large scale, industry should come with the government initiative, I can say Skill India, and provide employment skill to this marginalized community. Companies may focus on those skills from which they can generate intermediaries goods for their business. This step will provide self-employment to the vulnerable community and simultaneously will help corporates to get raw material or intermediate goods for their business at a cheaper price. And this responsibility can fulfill the Para 2 and 8 of Schedule 7 of Companies Act. पारा 8 जो क्लियरली बोलता है कि डेजिग्नेटेड फंड में आप ट्रांसफर कीजिए, तो उसका आप जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफरिंग टू डेजिग्नेटेड 8, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज हैं हमारे, उसको अपलिफ्ट करने के लिए अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो डेफिनेटली है कि दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज विल आल्सो कंसीडर्ड एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभी जो इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में हम देखते हैं कि जो वर्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जो बहुत मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, ठीक है, जो डेली वेजेस थे, डेली अर्नर थे, ठीक है, हॉकर्स थे, सबका कहीं ना कहीं काम बंद हो गया। तो अभी मेरा फोकस यहाँ पे ये है कि वी हैव अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑफ स्किल इंडिया। एज आई सेड,
कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एक आप चैनलाइज कीजिए, पार्टनरशिप कीजिए, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी पॉइंट नंबर 17 है, पार्टनरशिप गोल। तो गवर्नमेंट के साथ, एनजीओ के साथ, डिफरेंट फर्म के साथ कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड है। आप उस पर्टिकुलर सेक्शंस को, मार्जिनाइज सेक्टर को ऐसा ट्रेनिंग दीजिए, कुछ ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, वोकेशनल स्किल सेंटर्स खोलिए, जिसपे वो उनको ये सपोर्ट मिले, और आप ऐसा ट्रेंड कीजिए ताकि वो आप ही के कंपनीज के कुछ रॉ मटेरियल्स, आप ही के कंपनीज के कुछ इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस करें, बनाएं। तो जिससे क्या होगा कि विद इन दैट पर्टिकुलर लोकल एरिया आपको इजिली आपका रॉ मटेरियल, आपको इजिली आपका इंटरमीडिएट गुड्स अवेलेबल हो जाएगा। वो लोग स्किल्ड हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट अर्नर हो जाएंगे। जो अभी हम बात करते हैं कहीं ना कहीं कि आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो जो सपोर्ट होगा, डेफिनेटली वो सपोर्ट होगा, तो ये कहीं ना कहीं आउटकम आएगा। तो ये जो CSR का जो एम्पावरिंग वल्नरेबिलिटी कम्युनिटी है, तो ऐसा भी नहीं है कि यू आर गोइंग बियॉन्ड द शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में ऑलरेडी पारा 8 एज वेल एज 2 कहता है कि अपलिफ्ट करते हैं अगर आप डिप्राइव्ड सेक्शंस को, ठीक है, तो वो आपका CSR कम्युनिटी के अंदर आएगा। नेक्स्ट, CSR टुवर्ड्स माइग्रेंट लेबर। नाउ वन ऑफ द मेन target CSR towards the migrant labor. So now this pandemic has magnified inequalities now and is no longer restricted to just a health crisis, as it changed into a social crisis. The COVID-19 pandemic has exposed the vulnerability of migrant workers in a manner that cannot be ignored. Migrant workers have walked hundreds of kilometers to get home. Somewhat the problem arises ड्यूरिंग द रिवर्स माइग्रेशंस। अब देखिए, माइग्रेंट वर्कर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। कहीं ना कहीं हम सब, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर इस पर्टिकुलर पैंडेमिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे, ठीक है। और उनको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स मिले थे जब वो अपने घर जा रहे थे। तो लाइक प्रॉब्लम इन ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, फूड का प्रॉब्लम था, बेसिक एमिनिटीज था, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं, देखिए, कॉर्पोरेट ने हमारा बहुत काम किया, बट इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर हम बात करें, पीपल आर वॉकिंग ऑन दी नेशनल हाईवे रोड, बट कहीं ना कहीं लोकल कम्युनिटीज बहुत आगे आए, इंडिविजुअल आगे आए, लेकिन हम लोगों को कॉर्पोरेट्स बहुत बढ़ चढ़कर आगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में नहीं दिखे। कॉर्पोरेट्स थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखे कि अगर अचानक से सिचुएशन बिगड़ जाता है, अगर अचानक से कुछ पैंडेमिक्स आ जाते हैं, और कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है जो बहुत ही ज्यादा डिप्राइव्ड है, जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको सपोर्ट, ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स, हो सकता है कॉर्पोरेट्स के पास बहुत सारे मैपिंग ना हो, कि रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं, बट स्टिल व्हेन दे वर वॉकिंग ऑन द रोड्स, ठीक है, तो वी हैव सीन दैट मेनी इंडिविजुअल्स अपने सोशल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए, मेनी लोकल कम्युनिटीज, गांव वाले थे, शहर वाले थे, उन लोगों ने बढ़ चढ़कर आगे आया, सपोर्ट किया, लेकिन बहुत ही ज्यादा हमको तो कॉर्पोरेट्स वहां पे नहीं दिखते हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ कॉर्पोरेट्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड लाइक टू पुट एन एग्जांपल ऑफ IDFC बैंक। सो IDFC बैंक का आप देखोगे कि एक बैनर चलाते हैं वो लोग कोविड-19 रिलेटेड, श्रमिक सेवा प्रोग्राम, श्रमिक सेवा अभियान, शहरे मील प्रोग्राम दे हैव स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन। तो उन लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूशन किया, उन लोगों ने श्रमिक की सहायता किया, मतलब कहीं ना कहीं से जो बेसिक एमिनिटीज थे, कैसे ना कैसे करके कुछ किसी ने ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया था, किसी ने उनको ठहरने के लिए जगह दी थी। तो कुछ कॉर्पोरेट्स, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट पूरा नेग्लेक्टेड थे, कुछ कॉर्पोरेट्स ने दिखा, कुछ कॉर्पोरेट्स दिखे, बहुत लोगों ने सप्लाई किया मेल, बट एट ए मास लेबर हमको कॉर्पोरेट का बैनर्स बहुत ज्यादा नहीं दिखा कि कॉर्पोरेट्स जो है माइग्रेंट लेबर की तरफ बहुत, मतलब उस पर फोकस नहीं थे। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, कॉर्पोरेट कैन सपोर्ट, यहाँ पे डायरेक्टली आई एम सेइंग दैट कि कॉर्पोरेट कैन सपोर्ट टू स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज इन स्किल मैपिंग ऑफ रिवर्स माइग्रेंट and make their contribution in organization by providing different vocational training centers for reskilling the ability of migrant workers. Now अब देखिए, सबसे अच्छी बात ये थी कि कुछ स्टेट्स ने स्टार्ट कर दिया, जो भी रिवर्स माइग्रेंट आए हैं तो स्किल मैपिंग स्टार्ट हो गया है। मोस्टली बहुत सारे स्टेट्स रिवर्स माइग्रेंट का स्किल मैपिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, स्किल मैपिंग हो रही है,
तो कॉर्पोरेट्स को इस पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जो स्किल्ड लेबर हैं या जो हल्के फुल्के भी स्किल्ड है तो उनको थोड़ा सा और स्किल प्रोवाइड कर कर ट्रेनिंग सेंटर खोलकर उनको आप स्किल प्रोवाइड कीजिए, ठीक है, उन वर्कर्स को, और ऐसा सपोर्ट कीजिए कि वो उनको फिर से चैनलाइज किया जाए, फिर से वापस वर्क फोर्स में उनको लाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज CSR इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट पॉइंट आई विल फोकस ऑन, अब देखिए ये जो माइग्रेंट वाले काम थे, अगर आप इस माइग्रेंट वाले वर्कर पे काम करते हैं तो ये भी पारा 8 शेड्यूल 7 पारा 8 को फुलफिल करेगा, ठीक है। तो कॉर्पोरेट्स डजंट नीड टू गो बियॉन्ड द शेड्यूल 7, ठीक है। हम कुछ बात करेंगे जहाँ पे शेड्यूल 7 को भी, शेड्यूल 7 तो आपके गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दिया है कि शेड्यूल 7 को आपको फुलफिल करना है, बट ऐसा नहीं है कि आप बियॉन्ड द शेड्यूल 7 कुछ काम करते हैं तो देखिए सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा सोसाइटी की तरफ, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक स्लैब है जो हम कहते हैं ना कंपल्सन जो है, कभी भी आप अगर आप पे अगर हम कहते हैं कि हमारे पे या किसी पे भी एक कंपल्सन होता है, और कंपल्सरी होने के बाद उस काम को करने में उतना मजा नहीं आएगा जब आप वॉलंटरी करेंगे। कंपल्सरी हो जाएगा कि कंपल्सन है इस एक्टिविटीज को करना है, तो आपका जो एफिशिएंसी है और एक आप अगर वॉलंटरी करते हैं तो वो बहुत डिफरेंस है। तो सब कुछ अगर हम बोलते हैं कि अब 2% का जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज के लिए, वो तो भाई मिनिमम है, आप 2% के ऊपर भी जाके कर सकते हैं कॉर्पोरेट्स को, ठीक है। तो CSR इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, अब ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है? जनवरी 2020 marks 2 years of successful implementation of aspirational district program started in 2018 by Prime Minister Narendra Modi ji. Currently we have 112 aspirational districts across the nation. हमारे पास अभी 112 in January 2020 we have 112 aspirational districts across the nation. They represent most underdeveloped pocket of India across 26 states and 1 union territory. देखिए हमारा एक प्रोविजन है शेड्यूल 135 में कि गिव प्रेफरेंस टू लोकल एरिया, जहां पे कॉर्पोरेट्स काम करते हैं तो वहां पे आप गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया। There is one provision under section 135 state that companies should focus and give priority to the area where they situated like local areas of their working. अब जैसा कि हम लोगों ने स्लाइड में देखा था फाइनेंशियल ईयर 2018 में कि महाराष्ट्र, गुजरात, न्यू दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो ये सब बहुत ही ज्यादा ऊपर है CSR स्पेंड में, ठीक है। तो कारण एक ये भी है कि कंसंट्रेशन ऑफ होल कॉर्पोरेट्स इन दिस पर्टिकुलर बिग स्टेट्स। तो जब हम बात करते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की, तो नीति आयोग ने मैपिंग किया और ऑन दी 7 डिफरेंट स्केल, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, वाटर एंड सैनिटाइजेशन पे, ठीक है, ये डिफरेंट डिप्राइव्ड सेक्शंस, ये सबको इंडेक्सिंग कर 112 ऐसे डिस्ट्रिक्ट अभी इंडिया में हैं जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड पॉकेट में आते हैं, ठीक है। तो they identified this 112 aspirational district covered under the program. The corporates should be encouraged to pump their CSR fund in these 112 aspirational districts, focusing as a national priority. देखिए सिंपल सी बात है, जो हम कह रहे हैं ना कि लोकल एरियाज पे फोकस करना है, तो लोकल एरिया पे फोकस करना ये प्रेफरेंस दिया गया है, ये मैंडेटरी थोड़ी ना कहा गया है कि आप लोकल एरिया पे ही फोकस कीजिए। लोकल एरिया पे फोकस करने के लिए इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जो है फिजिबल होते हैं, आपका कॉर्पोरेट जो है, आपके जो कॉर्पोरेट्स के जो ये टीम होंगे वो फिजिबल होंगे लोकल एरिया पे ज्यादा ये करने के लिए, काम करने के लिए। बट डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन द लोकल एरिया, कॉर्पोरेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कवर द पैन इंडिया। और इसीलिए आपको अपने से, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट दीजिए और जाके आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा स्लम एरिया है, कौन सा रूरल एरियाज है। Already government has defined the aspirational district, 112 aspirational district है, आप डायरेक्टली उस aspirational district को टारगेट कर सकते हैं, आप उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो जो 112 aspirational district है उस पर आप फोकस कीजिए एज ए नेशनल प्रायोरिटी, ठीक। प्रेफरेंस ऑफ लोकल एरिया CSR एक्टिविटीज जो हमारा शेड्यूल 7 में है वो एक प्रायोरिटी है, प्रेफरेंस है, मैंडेटरी नहीं है। तो इससे बढ़ चढ़कर कॉर्पोरेट को आना चाहिए और अपने CSR के स्कोप को वाइडर करना चाहिए।
और डेफिनेटली ये जो एक्टिविटीज होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का पारा 1 to 10, 11 ऑफ शेड्यूल 7 को जस्टिफाई भी करेगा और उसके अंतर्गत हो जाएगा। जैसे हम हेल्थ की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, slum area and rural area development, a project in slum area and rural area जो 10 और 11 पारा है हमारा शेड्यूल 11 का, शेड्यूल 7 का, उसको भी फुलफिल करेगा। So very interesting point is, next point is CSR over and above mandatory ceiling। अब देखिए यहाँ पे हमने अपना एक व्यू रखा है कि Ministry of Commerce has set the guideline of spending minimum 2% of average net profit since 2014. So, what I am trying to say here कि we have n numbers of companies और बहुत अच्छे कंपनीज हैं, बहुत बड़े कंपनीज हैं। तो ये जो 2% का क्राइटेरिया है मैंडेटरी कर दिया गया कब? 2014 में। 2% इसके पहले भी मैंडेटरी नहीं था, ठीक है, उसके पहले तो वॉलंटरी था। मेरा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कॉर्पोरेट से यही, यहाँ पे कॉर्पोरेट पे मैं फोकस करके यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप बढ़ चढ़कर ओवर एंड अबव 2% सीलिंग को भी फुलफिल करते हैं तो आई थिंक कि वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाला बात होगा। और अभी रिसेंट गाइडलाइन है कि जो 2% इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट इन normal situation, in this particular situation, if corporates are spending CSR more than 2% in this particular current financial year, तो वो अपना स्पेंड को नेक्स्ट ईयर में भी वो इम्प्लीमेंट, मतलब उसको आप दिखला सकते हो नेक्स्ट ईयर में। फॉर एग्जांपल यू हैव स्पेंडेड 4% और 5%, तो आप नेक्स्ट ईयर, नॉट इन नॉर्मल केस, अभी पैंडेमिक सिचुएशन में आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट यहाँ पे है कि जो ये क्राइसिस हुआ है, स्टिल इन दिस क्राइसिस कॉर्पोरेशन शुड कम फॉरवर्ड फॉर फाइटिंग एंड ओवरकमिंग दिस सोशल डिजास्टर सिचुएशन, especially the big and giant corporate house. In the time of crisis, people appreciate the effort of those who help and will remember the companies which sacrifice their short-term gains in order to value their commitment to being social responsible. तो कहीं ना कहीं एक जो ये मैंडेटरी सीलिंग है ओवर एंड अबव, तो कॉर्पोरेट्स को थोड़ा सा इस पे फोकस करना पड़ेगा। 2% पे रेस्ट्रिक्ट नहीं रहिए। अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास आप हो सकता है दिस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन में थोड़ा सा फाइनेंशियल जो गोल है आपका, जो सिर्फ थोड़ा सा फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म गेन्स है, उसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, तो शेयर होल्डर्स वेल्थ जो लॉन्ग टर्म एक बात हम कहते हैं, तो अगर लॉन्ग रन में आपके पास एक फिजिबल इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, फिजिबल सोसाइटी, अच्छा हेल्दी सोसाइटी नहीं रहेगा, अच्छा प्लैनेट अर्थ नहीं रहेगा आपके पास, तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ होगा क्या, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ की बात करते हैं, इट शुड बी डायरेक्टली linked with this sustainable development goal. If you are fulfilling this sustainable development goal, if you are discharging your responsibility towards the society, so eventually you will succeed in maximizing the shareholders wealth too, or generating the wealth of shareholders too. So currently CSR, जब हम corporate social responsibility की बात करते हैं, तो अब नया thinking है to maximize the wealth of stakeholders rather shareholders. तो stakeholders में हमारा गवर्नमेंट भी आएगा, हमारे अगल बगल के सोसाइटीज भी आएंगे, हमारा फ्यूचर जनरेशन भी आएगा, हमारा प्लैनेट अर्थ भी आएगा। और जो ये ट्रिपल बॉटम लाइन कंसेप्ट है एलिंगटन द्वारा दिया गया था, पीपल, प्लैनेट एंड एट लास्ट प्रॉफिट, फोकस ऑन पीपल, देयर आफ्टर प्लैनेट अर्थ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, योर बॉटम लाइन इज टू जनरेट द प्रॉफिट फॉर योर शेयर होल्डर्स। Last point but not the least one is corporate social responsibility for all. Again, I will say that smaller companies mostly do not prepare plan for CSR practices. The introduction of triple bottom line concept of people, planet and profit by Ellington focused on three basic issues for the companies, that is to be responsible towards society, environmental responsibility and to save planet Earth, and last but not the least one, to achieve the bottom line as economic responsibility or generating profit respectively. So far as it is concerned, a company should be responsible for all its dues. What I am trying to say कि जैसे अभी तो 2014 में मैंडेटरी किया गया, तो मेरा यही कहना है कि दो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वॉलंटरी रखिए
छोटे से छोटे कंपनी है, वेदर यू आर 1% कंपनी, वेदर यू आर प्राइवेट कंपनी, वेदर यू आर पब्लिक कंपनी। देखिए ऐसा तो कोई बाइफरकेशन नहीं है। आप कोई भी कंपनी, अगर आप उस पर्टिकुलर स्लैब में आते हैं तो आपको सीएसआर ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना पड़ेगा। बट यहाँ सीएसआर फॉर ऑल का कहने का मेरा मतलब यही है कि आप वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है, तो आपका एक मोरल ऑब्लिगेशन बन जाता है सोसाइटी के प्रति। तो वहां पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इफ यू आर ए इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, तो you have some moral social obligations, so start why to wait for coming on that particular slab कि जब हम 5 करोड़ कमाएंगे, नेट प्रॉफिट मेरा प्रीवियस ईयर में 5 करोड़ होगा, तब हम सीएसआर करना स्टार्ट करेंगे। ये कोई सीएसआर इज नॉट कंपल्सन, सीएसआर आपको करना पड़ेगा। देखिए मॉरल ड्यूटी जब हम करते हैं ना, हम तो यहाँ पे कहते हैं कि पब्लिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बीइंग अ पब्लिक। नाउ जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक पब्लिक फिगर का मैं एग्जांपल कोट करना चाहता हूँ, सोनू सूद। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मतलब ही कम फॉरवर्ड बीइंग ए सेलिब्रिटी अपने लेवल पे, ठीक है, सारे लीगल अरेंजमेंट करते हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे स्टेट्स, ठीक है, अब लॉकडाउन था, पैंडेमिक था, बढ़ रहा था, तो स्टेट्स ने इम्पोज किए थे, तो बट अपने लेवल पे आते हैं, बात करते हैं, स्टेट से परमिशन लेते हैं और माइग्रेंट वर्कर को उनके घर तक पहुंचाते हैं। तो ये एक जब अकेला बंदा कर सकता था, तो कॉर्पोरेट्स तो इससे बढ़ चढ़कर बहुत कुछ कर सकते थे। कॉर्पोरेट्स के पास तो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा सपोर्ट था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीएसआर फॉर ऑल का मतलब है कि कॉर्पोरेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ एनी कंपनी, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ नेचर ऑफ द कंपनी, साइज ऑफ द कंपनी, कॉर्पोरेट should be responsible for the society, for the environment, for sustainable development, ठीक है। So a famous quote given by Ratan Tata, business needs to go beyond the interest of the companies to the communities they serve. So I would like to conclude my presentation or views of corporate social responsibility towards the society. Thank you very much for peaceful listening. Now, बहुत बहुत धन्यवाद, if you have some queries. जो आज के विषय वस्तु पर आपने बहुत ही सरल और संक्षिप्त में हम लोगों को समझाया, चाहे वो इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसआर के बारे में हो, व्हाई सीएसआर इज नीडेड, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीएसआर, पुटिंग सीएसआर फंड टू गुड यूज ड्यूरिंग आफ्टर कोरोना वायरस। सर, अब मैं विनीता मैम से आग्रह करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आए। Thank you, Anupam. Respected Professor James Sharma, sir, the convener of Udbhav, the lecture series. Our guest speaker of this session, Dr. Kumar Aditya. Our participants, our organizing team members, the secretary of this series, Udbhav, Dr. Dharen Kumar Pandey, and all the audiences present here. A very good afternoon to all of you. First of all, so we have reached at the end of this session. That is the first session of fourth day of this series. And I am Vinita Kumari on the behalf of PG Department of Commerce and IAA Patna branch is here to propose my vote of thanks to our expert, Dr. Kumar Aditya, sir. Sir, today's your explanation about the topic that is CSR post COVID-19 was very explanatory explanation of this beautiful topic, and you beautifully explained this topic. And and sir, you have given full overview over the CSR topic, and not only the overview you have given many ideas to our participants, so that many topics they can take out from your lectures to research further.
Thank you so much, sir, for today's lecture. Thank you, sir. And I would like to thank our participants. I would like, thank you, sir. I would like to thank our participants who are listening to the lecture today. And I would like to thank our organizing team members who are always supporting us. And I would like to thank Anupam, who is coordinating very well today. Thank you. I would like to thank all of you here present here. Thank you so much, and all the best. Thank you, sir. Thank you, Aditya, sir. Thank you so much, sir. So here Pragati Singh has raised one question, that is there any uniform standard followed by the Indian companies for reporting of CSR activities? So Pragati, I will just write here on your particular queries. I will like to say that कि देखिए हमारे पास जो CSR एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल 7 एज वेल एज सेक्शन 135 इज डेडिकेटेड फॉर CSR एक्टिविटीज. तो कंपनीज को जो CSR एक्टिविटीज फॉलो करने हैं, दैट शुड बी ऑलवेज अलाइंड विद द शेड्यूल 7 और सेक्शन 135 को आपको नजर में रखते हुए को आपको मतलब ये देखते हुए ही जो भी आप एक्टिविटीज करते हो, तो हम तो यहाँ पे क्लियरली यही कहें कि आपका स्टैंडर्ड है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट में आपका शेड्यूल 7 आपको डेडिकेटेड है CSR एक्टिविटीज करने के लिए. और जो ये 12 हेड हैं, इनिशियली शेड्यूल 7 हैव ओनली 10 और 9 हेड, बट अमेंडमेंट्स ओवर द टाइम जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट्स आए हैं, रिसेंट 2019 में जो ये रिसर्च एंड इनोवेशंस एज वेल एज, तो ये क्लियरली आपको बताता है कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड है शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको इंडियन कंपनीज एक्ट को होल CSR एक्टिविटीज करना है. ठीक है. Okay, thank you, sir. और Krishna Kumar, is there any provision for CSR in order to build medical infrastructure in rural areas? तो कृष्णा, अगेन मैं बार बार एक चीज आपको बता रहा हूँ कि जो ये शेड्यूल 7, आप देखिए शेड्यूल 7 का पारा 11, पारा 12, डेवलपमेंट ऑफ स्लम एरिया, डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट. तो जो नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चेकआउट किया है, मैप किया है कि हमारे पास अभी करेंटली 2020 में 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये हर महीने इसका रैंकिंग होता है. 2020 में सबसे ऊपर अभी हमारा चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो यूपी का है वो रहा है, मतलब कि अपग्रेड होते होते वो 100 मतलब अभी वो अमॉन्ग 112 सबसे ऊपर उसका रैंकिंग आया है. तो ये जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो इसमें जो हम कह रहे हैं शेड्यूल 7 जो है आपका, शेड्यूल 7 का पारा 11, पारा 12 डेडिकेटेड है स्लम एरिया और रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए. और साथ ही साथ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो है वो तो ऑन की 7 फैक्टर्स, हेल्थ, वाटर, हंगर, डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इन सब के लिए डेडिकेटेड है. तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर हम बात करते हैं रूरल सेक्शंस के लिए, तो डेफिनेटली कॉर्पोरेट्स को आगे आना चाहिए. ये पर्टिकुलरली शेड्यूल 7 के पारा 11 और 12 को नजर में रखते हुए और उसको विद पार्टनरशिप गवर्नमेंट और ये जो डिस्ट्रिक्ट है उस पे फोकस करते हुए काम करना चाहिए. ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास ऑलरेडी एक मैप्ड डिस्ट्रिक्ट है रूरल एरिया का, डिप्राइव्ड एरिया का, आप उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कीजिए ना. एक मैंने बात आपको एक बताया कि जो CSR है, जो हम लोग बोलते हैं ना CSR शुड बी ऑन लोकल एरिया, ये लोकल एरिया मैंडेटरी नहीं है, लोकल एरिया प्रेफरेंस है. प्रेफरेंस इसलिए दिया गया था ताकि कंपनी प्रेफर्ड हो, कंपनी फिजिबल हो वहां पे काम करने के लिए, अगल बगल के काम करने के लिए. कंपनी को अपना भी काम करना है, CSR करना है. तो कहने का मतलब है कि आपके पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मैपिंग नहीं होता है. नीति आयोग ने आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट
बता दिया कि हमारे पास 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो कॉर्पोरेट्स को डायरेक्ट कंट्रीब्यूट करना चाहिए। अब नाउ कॉर्पोरेट्स को ये नहीं देखना है कि स्लम एरिया कहाँ है, कहाँ रिक्वायरमेंट है, आपके पास ऑलरेडी 112 ऑप्शन है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, आप डायरेक्ट वहां पर अपना इनिशिएटिव लीजिए, CSR फंड को वहां पे इनकॉर्पोरेट कीजिए। सर एक्चुअली मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इसलिए रूरल एरियाज में सबसे हाँ कृष्णा, तो सबसे पहला मैंने टॉपिक वही लिखा था कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको बहुत ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, और वो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मैं कहूंगा फोकस एरिया में पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अब देखिए गवर्नमेंट फ्रंट पे सब कामें तो हो रही हैं, बट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं ये यहाँ पे यही कहूंगा कि गवर्नमेंट को एक्सेलरेट करने के लिए CSR एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट के काम को एक्सेलरेट करने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि कॉर्पोरेट इंडिपेंडेंटली काम करें, कॉर्पोरेट आइए पार्टनरशिप कीजिए, कॉर्पोरेट को NGOs के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। अभी देखिए रिसेंटली आप देखिएगा तो हेल्थ इक्विपमेंट है, रिलायंस ने कोविड 100 बेड दे दिया, COVID-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल दे दिया मुंबई में, गुजरात में, बट ये पर्टिकुलर सिचुएशन से ही रिलेटेड नहीं, इसके बाद भी पोस्ट कोविड भी अगर सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल भी हो जाता है तो हमको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चीपर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमको देने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, और इसमें कॉर्पोरेट का बहुत ही ज्यादा रोल होगा। देखिए कॉर्पोरेट्स कर सकते हैं तो कॉर्पोरेट्स को कोलैबोरेट करना चाहिए। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि कोलैबोरेशन कीजिए और कोलैबोरेशन कर इस पे काम कीजिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू कृष्ण, थैंक यू सर। आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दे दिया गया है, आप लोग 5 मिनट के अंदर इसको भरें। थैंक यू वरुण। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोग के योगदान के लिए निकाला। इसके लिए सर आपको तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम। सुरक्षित रहें सर, और हम लोग भी धन्यवाद। सुरक्षित दर्शन देते रहें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो shall we end, वरुण? सर आप इन कर कर सकते हैं ना? ओके, थैंक यू वेरी मच।